Hello and welcome back to the series of Indian economic development. This is part 5th of chapter 1, that is Indian economy on the eve of independence. So far we have completed 4 parts of chapter 1. If you are new to the channel, please subscribe to the channel to get notified for upcoming videos and never miss any video in future. Before watching this part, I suggest to complete the previous parts. You can find the link of playlist in I button and in description box. Today, we are going to cover these topics. First is demographic condition, occupational structure, infrastructure, and some positive side effects of British rule condition. Now, these are the demographic condition under the British rule. So, the first official census was conducted in the year 1881. 1921 is known as the year of Great Divide. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. The second stage of transition began after 1921, so the year 1921 is described as the year of Great Divide. 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज आई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की और 1921 के बाद आई हमारी सेकेंड स्टेज. तो इन दोनों स्टेज को डिवाइड करने वाला ईयर था हमारा 1921. So that is why it is known as year of Great Divide. So now let's look at what was in the first stage and the second stage of transition. First stage of transition before 1921, high birth and high death rates. Death rate fluctuated from year to year. As a consequence, population remained almost stationary. So 1921 से पहले जब फर्स्ट स्टेज हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थी तो उसमें दोनों ही रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट, दोनों ही रेट बहुत ज़्यादा हाई थे और डेथ रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस होती रहती थी हर साल, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी थी, ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया. सेकेंड स्टेज आफ्टर 1921, फ्रॉम दिस ईयर पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइंड एंड रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज. 1921 के बाद जब सेकेंड ट्रांजिशन का फेज आया तो इस टाइम पे पॉपुलेशन जो है वो कभी भी फिर नीचे वापस से डिक्लाइन नहीं हुई. इसके बाद पॉपुलेशन हमेशा कंटिन्यूसली राइजिंग फेज में ही रही. ये था हमारा सेकेंड ट्रांजिशन और इन दोनों ट्रांजिशन को, फर्स्ट को और सेकेंड को डिवाइड करने वाला ईयर था हमारा 1921, जिससे हमें पता चलता है कि पहले फर्स्ट फेज में क्या था और सेकेंड फेज में क्या था. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. Various social development indicators. First one is literacy rate. What is literacy rate? The proportion of individuals of a particular age group who have the ability to read and write. अगर हम proportion ले सारे individuals का किसी भी एक particular age group के, let's say 15 years तक हम एक age group लेके चलते हैं और अगर इतने साल के बच्चे या individual हम ले जिनको लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है, तो those are considered as literate people. So that is known as literacy rate. Overall literacy level was less than 16%. Out of this, the female literacy level was at negligible low of about 7%. ओवरऑल जो लेवल था वो हमारा 16% था, जिसमें से 16% में से भी सिर्फ 7% ही हमारा फीमेल लिटरेसी रेट था. इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, दैट इज़ कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम IMR भी बोलते हैं. व्हाट इज IMR? इट इज़ द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स. 1000 बच्चों का अगर हम डेटा ले तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 ईयर से पहले या 1 साल से पहले ही जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उस रेट को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, विच वॉज क्वाइट अलार्मिंग. बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन में ये रेट था. कितना था? 218 पर 1000, मतलब 218 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती थी. नाउ इट इज़ 34%, 34 पर 1000, सॉरी. अब ये जो नंबर है ये रिड्यूस होकर 218 से 34 पर 1000 हो चुका है. नेक्स्ट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रेस्पेक्टिवली. तो हमारा जो BR था वो हमारा था 48 पर 1000 एंड जो हमारा DR था वो हमारा था
40 per 1000. Next is life expectancy. What is life expectancy? Life expectancy is a statistical measure that estimates the number of years an individual is expected to live. कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक जो है कोई भी एक इंसान सरवाइव कर सकता है या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इतना तो कोई भी इंसान सरवाइव करेगा. इट वॉज लो एज 32 ईयर्स, मतलब कि 32 की ईयर्स तक ही लोग सरवाइव कर पाते थे. इससे ज़्यादा नंबर आगे जा ही नहीं पाता था. मतलब कोई भी मान लो सिचुएशन कि कोई 32 ईयर्स का है और उसकी डेथ हो गई. ज़्यादातर लोग जो हैं वो 33 या 34 तक ही जा रहे हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. प्रेजेंटली इट इज़ 69 ईयर्स. अभी अगर हम देखें तो अप्रोक्स अगर हम मान लें तो 70 या 69 तक अगर कोई इंसान इतना सर्वाइव कर लेता है तो उसके बाद ही उसकी नेचुरल डेथ होती है. लो रेट reflects lack of healthcare facilities, awareness as well as means to avail them. अब जब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है तो इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तभी लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहे. दूसरा, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस लाइफस्टाइल को लेके. लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? लाइफस्टाइल में हर चीज़ आती है. क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, एवरीथिंग कम्स अंडर लाइफस्टाइल. इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर अभी नहीं है. और अगर है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है तो लोगों के पास उतने रिसोर्स नहीं है, उतने मीन्स नहीं है कि वो इस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएँ. नेक्स्ट इज आर occupational structure. What is occupational structure? Occupational structure refers to distribution of working population across primary, secondary and tertiary sectors of economy. इन तीनों सेक्टर के अंदर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो लोग काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. अब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग जो काम करते थे, वर्कफोर्स का जो लार्जेस्ट शेयर था वो कहाँ था? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते थे. सो द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज लाइक दिस. प्राइमरी सेक्टर indulged people with 72.7%. 10.1% people were indulged in secondary sector. secondary sector में हमारा क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें हम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग काम जो रिलेटेड होता है मैन्युफैक्चरिंग से, वो सारा का सारा हमारा कहाँ आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. एंड दिस इज आर प्राइमरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर का बेसिकली क्या होता है? सर्विसेज. हमारी जितनी भी सर्विसेज होती है वो सारी की सारी कहाँ आती है? टर्शरी सेक्टर के अंदर. दिस इज सो 17.2% people were indulged in tertiary sector. Madras Presidency, comprising areas of present-day states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, and Karnataka. Bombay and Bengal witnessed a decline in the dependence of the workforce on the agricultural sector, with a commensurate increase in the manufacturing and the services sector. जो हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी थी प्लस बॉम्बे एंड बंगाल, यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर की वर्कफोर्स डिक्लाइन हो गई और साथ ही साथ में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स का जाना. सो दिस वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसके अंदर प्रेजेंट डे में हमारा क्या क्या आता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका. However, there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in states such as Orissa, Rajasthan and Punjab. उसी टाइम पे क्या हुआ? जब ये सब हुआ था, जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर हमारी वर्कफोर्स इंक्रीज हुई थी, कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे बंगाल के अंदर. तभी उसी टाइम पे क्या हुआ? उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, यहाँ पे क्या हुआ? वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हुई. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसे चेंज हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी में एग्रीकल्चर फॉल हुआ, लेकिन उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम इंक्रीज हुआ. यहाँ पे काम कहाँ इंक्रीज हुआ? यहाँ पे काम इंक्रीज हुआ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर. सो दिस वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज आर इंफ्रास्ट्रक्चर. ब्रिटिशर्स डिड सम वर्क इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो.
What is infrastructure? Infrastructure refers to the elements of economic change like means of transport, communication, banking, etc. and social change like growth of education, health, housing, facilities. This is misprint. Growth of educational sector, आप ऐसे बोल सकते हो, फिर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जब आप इकोनॉमिक चेंज कंट्री में आ रहा हो या फिर सोशल चेंज, दोनों ही अगर हो तो वो क्या बनता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, फर्स्ट थिंग व्हाट दे डिड वो दे इंट्रोड्यूस रेलवेज. Railways were introduced in 1850 and were developed to transport finished goods from Britain to the interiors of colonial India. रेलवे भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन इंट्रोड्यूस क्यों की थी? अपने बेनिफिट के लिए, ताकि वो फिनिश गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके ब्रिटेन से लेके इंडिया के कोने कोने तक, हर जगह उनके ब्रिटिश गुड्स पहुंच सके. They aimed at widening the size of market for British products in India. रेलवे को इंट्रोड्यूस करने का उनका मोटिव ये था कि उनकी जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है उसका जो मार्केट साइज इंडिया बनाया था उन्होंने, वो मार्केट साइज बढ़ सके, हर जगह उनके प्रोडक्ट्स जो है, जो गुड्स हैं उनके फिनिश गुड्स वो पहुंच सके. सेकेंड थिंग व्हाट दे डिड वाज दे डेवलप्ड पोर्ट्स. They developed ports to handle export of raw material to Britain and import of finished goods from Britain. Ports उन्होंने बनाए क्यों थे? ताकि जितना भी एक्सपोर्ट होता है रॉ मटेरियल का वो इजीली ब्रिटेन तक हो सके, और ब्रिटेन से जितना भी गुड्स आता है इंडिया के अंदर फिनिश गुड्स, वो इजीली वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सके अपने ब्रिटिश गुड्स. पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. क्योंकि ब्रिटिश रूल को एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करने थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको पूरे इंडिया के अंदर बना के रखना था, तो उन्होंने क्या किया, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, बातचीत वो अच्छे से कर सके अपने ऑफिसर से. अगर कोई किसी स्टेट में है तो दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है, क्या नए रूल्स आए हैं, वो बताया जा सके. उसके लिए उन्होंने कम्युनिकेशन का एक तरीका निकाला, दैट इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ताकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से इंडिया के अंदर चल सके. नेक्स्ट, roads were developed to facilitate transportation of raw material from different parts of country to the ports, ताकि इंडिया के अंदर हर जगह से कोने कोने से जहाँ जहाँ जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो रॉ मटेरियल वहाँ से लेके वो पोर्ट्स तक ले जा सके, ताकि पोर्ट से फिर वो ब्रिटेन में उस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सके. सो दिस वाज द मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स. There always remained an acute shortage of all-weather roads to reach out to rural areas during the rainy season. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines. अब क्योंकि उन्होंने अपने मोटिव के लिए रोड्स डेवलप की थी, तो हमेशा ही एक शॉर्टेज बनी रही ऑल वेदर रोड्स की. ऑल वेदर रोड्स क्या होती है? जो बारिश में या मौसम खराब होने से जो रोड्स खराब नहीं होती है और जिसको हम पक्की रोड भी बोलते हैं, वो नहीं थी. तो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता था तो जितने भी रूरल एरियाज थे वहाँ पे खाने की शॉर्टेज हो जाती थी, वहाँ हम खाना नहीं पहुँचा पाते थे क्योंकि अच्छी सड़कें नहीं थी. एंड जब भी भूखमरी आती थी, खाना नहीं पहुँचा पा रहे, जितने भी नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, तब अगर वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं तब भी उन तक हेल्प नहीं जा पा रही थी क्योंकि रोड्स अच्छी नहीं थी. सो इससे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने डेवलपमेंट किस लिए की थी? रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक ले जाने के लिए, अपने फायदे के लिए. ऑल्दो ब्रिटिशर्स डिड एवरीथिंग फॉर देयर बेनिफिट, वैसे तो उन्होंने सब कुछ अपने फायदे के लिए ही किया था, पर कुछ अपने फायदे से वो जो है, जब वो यहाँ से गए इंडिया से, तो कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स वो अपने छोड़ गए थे. वो पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहे वो क्या क्या थे? फर्स्ट वॉज कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स. Farmers started considering market price of produce as an important determinant of their production decision. पहले फार्मर्स जो है, ब्रिटिशर्स से पहले फार्मर्स जो है सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे. व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? ये हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, एंड दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे फार्मर्स का जो आउटलुक था, जो नज़रिया था, वो सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही था.
लेकिन उनके आने के बाद जब उन्होंने उनसे कैश क्रॉप्स उगवाई थी और कमर्शलाइजेशन किया था, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो फार्मर्स को लगा कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, तो उनके जाने के बाद जो नज़रिया था फार्मर्स का वो चेंज हो गया। और अब जो फार्मर्स है वो मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करते थे क्रॉप्स का, और डिसीजन भी उनका किसके बेसिस पे होता था, मार्केट प्राइस के बेसिस पे, और ये देखकर कि कितना सरप्लस वो जनरेट कर सकते हैं अपनी फसल से। नेक्स्ट वाज न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Spread of railways and roadways opened up new opportunities of economic and social growth. रेलवे के इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ और रोडवेज के इंट्रोड्यूस होने से नई अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली। जो कोई रूरल एरिया में रहता था या बिल्कुल ही रिमोट एरिया में रहता था या किसी कोने में रहता था कंट्री के, वो जो है ऐसी जगह पे अब ट्रैवल कर सकता था जहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी काम करने की, बिकॉज ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज। खाना जो है अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर है या फिर फेमाइन है तो वहाँ पे हम खाना भी पहुँचा सकते थे। तो कंट्री में लोगों की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ दोनों हुई रेलवेज और रोडवेज के इंट्रोडक्शन की वजह से। नेक्स्ट वाज कंट्रोल ऑफ फेमाइन्स। फेमाइन मतलब भुखमरी। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज, अकॉर्डिंगली फेमाइन्स वर कंट्रोल। अब क्योंकि रोडवेज अच्छे फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो जैसे ही फेमाइन आती थी, भुखमरी आती थी, तो इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता था और फूड ग्रेन्स जो है अफेक्टेड एरिया तक पहुंचाए जाते थे, जिसकी वजह से फेमाइन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि उनको रूल करना था तो वो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा करते थे कंट्री के अंदर जब वो थे उसके टाइम पे। लेकिन जब वो गए तो उनके बाद वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो इंडिया के अंदर रह गया। अब वो जो लेगेसी यहाँ पे रह गई वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अब आगे कमिंग जो आगे जाके प्लान बनाने वाले थे उनके लिए वो एक बहुत अच्छा बेस एज अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट उनके लिए वो बना। So this was all about chapter 1. With this video and the last part, we are ending our chapter 1, that is Indian economy on the eve of independence. If you like the video, please share, subscribe to the channel so that you can get notified for the upcoming videos. And thank you for being with me with your patience. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep studying.